I am talking about carbon and its compounds. I am talking about carbon and its compounds. मैं carbon और carbonic compounds की बात करता हूँ. Now, which property of carbon is leading it to have this entire world of organic chemistry? One is tetravalency, and the second is catenation. What is tetravalency? The valency of 4. ठीक है? The ability to bond with 4 other atoms. So 4 tetravalency होने के कारण ये अपने साथ खुद के साथ दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर ट्रांसफर क्या बोलते हैं गेन कुछ भी कर सकता है because of this tetravalency, and that is why it forms a huge range of compounds which are majorly covalent in nature. Now, when I talk about catenation, catenation is the property by virtue of which an element has the ability to form bonds with itself. बहुत कम ऐसे elements होते हैं जो खुद के साथ bonds बना सकते हैं. खुद के साथ bonds बना सकते हैं, ठीक है, but खुद के साथ bond बना के एक लंबी chain बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है. Rather property नहीं है, वो नहीं कर पाते. This carbon has the maximum of catenation property. Oxygen में होता है, sulfur में होता है, phosphorus में होता है, nitrogen में होता है, but very limited. But when I talk about long chains of hundreds, 20, thousands molecules, the carbon will come into picture. So this catenation property is very prominent in अपना carbon atom. In carbon, ये क्या बोलते हैं element, because of which it forms huge carbon chains. Now, in these huge carbon chains, hydrogen is generally substituted. So, and what do we get? We get is hydrocarbons. What do we get? We get hydrocarbons. What are hydrocarbons? Breaking into two parts: hydrogen and carbon के compounds. ठीक है? Hydrogen and carbon के compounds. The simplest hydrocarbon is what beta? Methane. ये देखो. Carbon attached with 4 other hydrogen atoms. अब इस हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं यहाँ पे सपोज कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप डाल दूं या फिर मैं कोई हाइड्रोजन डाल दूं, मैं कुछ भी डाल दूं, इस एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके या फिर इन तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मैं इस एक कंपाउंड को अलग अलग कंपाउंड्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ. व्हाट इफ आई ऐड अ मिथाइल ग्रुप ओवर हियर? बन गया. ठीक है. व्हाट इफ आई ऐड अनदर मिथाइल ग्रुप ओवर हियर? ऐसे कर करके ये कार्बन चेन बढ़ता जाएगा और मुझे huge tons and tons of क्या बोलते हैं कार्बन कंपाउंड्स मिलेंगे. we get a entire family. तो उसके लिए that there is a word called as क्या बोलते हैं, what is the group of compounds called बेटा? मतलब similar general formula and same difference and also क्या बोलते हैं? किसी को याद है? 10th में पढ़ा था? Anyone? Anybody remembers this? नहीं? हाँ, maybe. Sir, can you repeat the question, please? My question is, see, hydrocarbons are divided into 3 classes: alkanes, alkenes, and alkynes. The basic difference is यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे at least one कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे at least one कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा. ठीक है? This is the max you can achieve. These two are called as unsaturated because कार्बन कार्बन का डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है. यहाँ पे it is called as a saturated hydrocarbon. Alkane, alkene, alkyne. Now alkanes can be represented by a general formula CnH2n plus 2. Okay? Alkenes are represented by CnH2n, CnH2n minus 2. नहीं पता? Plus 1. Yes. अच्छा. Alkynes will be represented by general formula CnH2n. मतलब if I substitute the value of n, I can get any member of this homologous, वर्ड सुना है? सीरीज. homologous series सुना है बेटा पहले? homologous series 10th में. A homologous series is that a series of compound or a group of compounds which can be represented by a single general formula. A single general formula.
दे डिफर ओनली बाय CH2 ग्रुप। कितना डिफरेंस होता है उन दोनों के दो कंसेक्यूटिव के बीच में? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, सेकंड मेंबर इज C2 2N6, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? इन दोनों में कितना क्या डिफरेंस आ रहा है बताओ मेरे को? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, एम आई राइट? Yes. कौन सा जा रहा है? No, sir. अच्छा, थर्ड मेंबर कौन सा है? C3H8। ये दोनों में क्या डिफरेंस है कंसेक्यूटिव हाइड्रोकार्बन्स में? CH2 अगेन। इसके बाद मैं लिखूंगा C4H10। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अगेन CH2। तो आप देख रहे हो दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स का डिफरेंस कितना आता है? CH2 CH2 CH2। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो सच अ सीरीज इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस सीरीज। ये होमोलोगस सीरीज वर्ड 10th में नहीं सुना बेटा तुम लोगों ने? आई एम सरप्राइज। सुना है सर, सुना है सर. सुना है सर. आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो फिर जब मैंने पूछा? होमोलोगस सीरीज वही होता है ना बेटा, दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में द डिफरेंस इज कॉमन CH2 and they are represented by a general formula, right? Same as with alkenes, same as with alkynes. Yes, sir. अच्छा, इसका पहला Yes, मेंबर sir. बताओ। इसका पहला मेंबर कैन इट विल बी CH या फिर C2H? N2 4 minus 2 2 C2H2 Yes, sir. पक्का? कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? आप लोग सब चीज यस बोला, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे जनरल फॉर्मूले में? Yes, sir. Is this right now? है ना? The general formula for alkenes is CnH2n and for alkynes it is CnH2n minus 2. Guys, please be honest with me. Are you listening for this for the first time? You haven't ever heard about the general formula of alkene, alkene, alkyne, how are they represented and all? Please be honest with me. For being honest with me, you have to speak. Sir, I have heard these terms. What beta? We have studied this, but we are not able to click it. अच्छा, ठीक है। ये alkenes का समझ में आया पूरा? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 डालता हूँ, अगर मैं कार्बन 1 डालता हूँ, N की जगह 1 डालूंगा अगर मैं, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 CH2। बट यहाँ पे CH2 जब हम लोग डालेंगे बेटा, will this be satisfied? अल्कीन No, बनना sir. चाहिए नहीं ना? एंड एटलीस्ट वी नीड 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब मिनिमम 2 कार्बन आइटम चाहिए अपने को इसमें। तो N की जगह 2 डालो, N की जगह 2 डालो तो C2 2 2 जा 4 H4। यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे जहां डैश है वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये सैटिस्फाई हो गया, अल्कीन बन गया ये। Yes, sir. दिस इज गोइंग टू बी C3 3 2 जा 6 C3H6, ये हो जाएगा C4H8। ये बेटा समझ रहे हो क्या? अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन CH2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? एक कार्बन और दो हाइड्रोजन, अगेन एंड सो ऑन। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है कि दो कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। CH2 का डिफरेंस अल्केन में भी आया, अल्कीन में भी आया, जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट भी किया। अरे बेटा हाँ सर। यहाँ देखें C2H2, ठीक है, C2H2 मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड H2 दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड। दिस इज योर प्राइमरी अल्काइन, है ना? इथाइन से शुरू होता है ना, Yes, ये sir. से शुरू होता है, बट यहाँ मीथेन से शुरू होता है। ओके, नेक्स्ट वाला थर्ड वाला क्या हो जाएगा? C3H 2 3 6 6 - 2 4 C3H4, है ना? हाँ सर. हाँ सर. हाँ sir. Then it is going to be C4 4 2 जा 8 8 - 2 6 C4H6। बेटा इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है? एक कार्बन कम है, दो हाइड्रोजन कम है CH2। इन दोनों के अंदर कंसेक्यूटिव मेंबर दे रहा हूं मैं, कंसेक्यूटिव मतलब बैक टू बैक। इसका और इसका डिफरेंस ही निकाल रहा हूं, इसके जस्ट नीचे वाले का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? अगेन CH2 आ रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस सीरीज, इफ यू कैन अंडरस्टैंड।
sub members को you can represent it by a general formula. The difference between two consecutive members is CH2 CH2. दिख रहा है बेटा अभी? So Yes, these sir. hydrocarbons, alkanes, alkenes, and alkynes are known as homologous series. Why? One, because they can be represented by a general formula. Two, because the difference between the consecutive members is constant. CH2, CH2, CH2. Arithmetic progression वगैरह पढ़ा है आप लोग ने वैसा टाइप का? मैं नहीं बोल रहा हूँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, राइट? Yes. Yes, sir. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पता कुछ किसी को भी पता है? हाँ पता सर. है सर. हाँ सर तो ये पता है। ऐसा ही सीन है। अभी समझ में आया अल्केन अल्कीन अल्काइंस का डिफरेंस? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये लिख लिया बेटा, रब कर दूं बोर्ड पे से? Yes, no, maybe. Can I rub this from the board? सर 2 मिनट बोल लेकर आओ। या एग्जैक्टली ऐसा बोलो ना बेटा, अगर मुझे नहीं बोलोगे तो मैं रब कर दूंगा, फिर आप बोलोगे अरे रब कर दिया इसने। सर हो गया, रब कर दो। ओके No sir, रुको. ओके सर हो गया। सबका हो गया? यस सर। ओके इसमें किसी को भी डाउट है प्लीज आस्क मी बेटा। आप लोग अभी बहुत कम बच्चे लोग हो, मतलब आई थिंक यू आर समवेयर इन द नंबर ऑफ 20s और 30s। जो भी क्वेश्चंस है पूछ लो बेटा, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेगा फिर आप लोग और शर्माओगे और ध्यान नहीं दोगे, इससे बेटर है ये स्पेशल लेक्चर्स हो रहे हैं इनका फायदा उठा लो, डाउट्स पूछ लो। एक को भी कोई भी सिलिएस्ट ऑफ द डाउट्स आस्क मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। व्हाई एम आई टेकिंग these lectures again and again so that your basics become strong, so that आगे जाकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लीज समझो बेटा। ओके फाइन, अभी देखो बेटा ये है हमारा अल्केन। अल्केन इज योर प्राइमरी हाइड्रोकार्बन। अल्केन्स के ही सब डेरिवेटिव होते हैं। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 where n is representing the number of carbon atoms. n can be from 1 to whatever numbers you go up to 1 2 3 and so on, ठीक है? इस तरीके से रहता है n का वैल्यू 1 2 3 and so on, फाइन। तो अभी पहला नंबर क्या हो जाएगा CH4, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा C2H6, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16 and so on। पहले वाले का नाम क्या होता है बेटा? मीथेन। दिस इज कॉमन नेम। व्हाई कॉमन नेम? बिकॉज ये मार्शी गैस इसमें से निकलता है, मार्शी एरियाज में पाया जाता है मीथेन, तो इसका नाम मीथेन हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का नाम है ईथेन, दीज आर कॉमन नेम। तीसरे वाले का नाम है प्रोपेन। सबने देखो कॉमन क्या है, लास्ट में ANE आ रहा है। चौथे वाले का नाम इज ब्यूटेन। बस ये चार याद रखने, इसके बाद तो सब इट इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम्स तो क्या हो जाएगा पेंटेन। Pentane. 6 कार्बन एटम्स तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। 7 कार्बन एटम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। Heptane. 9 होगा तो नोनेन, 10 होगा तो डोकेन, डेकेन, ठीक है। बस सब में कॉमन क्या है बेटा? देखो ANE ये एन सबके पीछे है बिकॉज इट इज अ अल्केन। अगर आप इसके अंदर 1 डालोगे तो ये मिलेगा, n की जगह 1 डालोगे तो ये मिलेगा, 2 डालोगे तो ये मिलेगा, 3 तो ये। इस तरीके से आप n में जो भी n का वैल्यू डालोगे आपको करस्पॉन्डिंग अल्केन मिलेगा। सिंपल एज दैट। इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, Any sir. doubt? Please ask me right now. अच्छा, this is for alkane. अभी alkane से अपने को मिलेगा alkyl group. This is a side chain. This is a क्या बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ alkane. ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। बेटा व्हाट्स द डिफरेंस ओवर हियर? CnH2n+2n+1 में एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है। अच्छा, मीथेन माइनस हाइड्रोजन विल गिव मी व्हाट बेटा? CH3 अल्काइल। ठीक है,
अल्क अल्क सेम है, बाद में एन ही है, यहाँ पे आइल है, तो यहाँ पे मिथ मिथ के एन को हटा करके हम क्या लिखेंगे बेटा? मिथ मिथाइल आइल। ये देखो एन रिप्लेस कर दिया, आइल डाल दिया, मिथ मिथ सेम है, एन की जगह आइल आ गया। इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल बचेगा बेटा C2H5, अल्काइल बन जाएगा। इथेन का क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल। इथाइल अच्छा, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचेगा बेटा? C3H7, H7 हो जाएगा प्रोपाइल। फाइल ठीक है, रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम ब्यूटेन, व्हाट विल यू गेट? C4H9, क्या मिलेगा बेटा अपने को? ब्यूटाइल। ब्यूटेन से ANE को रिप्लेस करना है YL से, क्यों? बिकॉज अल्केन से अपने को अल्काइल ग्रुप मिला है, राइट बेटा? सिमिलरली फॉर दिस व्हेन वी गो ऑन, एक एक हाइड्रोजन कम कर दोगे, करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। ये अल्केन और अल्काइल में फर्क समझ में आया सब लोग को? यस सर Am I going to? सर आज से न्यू स्टूडेंट के लिए ये होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? ये जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको याद है बेटा ये सब मैंने किया है तुम लोग के लिए? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि आज का ये जो लेक्चर सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए है क्या? नहीं, आप लोग भी बैठ सकते हो अगर आपको रिवीजन करना है तो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज द रिवीजन ऑफ व्हाट आई हैव ऑलरेडी टेकन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है? Okay. हाँ, ये दिख रहा है सब लोग को? अल्केन और अल्काइल में फर्क हुआ? कितने लोग नए हैं जो लोग को ये IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ था बेटा? कैन यू रेज हैंड्स? रेज हैंड्स मतलब वहां पे जूम में रेज हैंड करने का ऑप्शन है। ओमकार है, ओम, अच्छा और है, लेट मी सी, ओमकार, प्रकृत एंड बॉनी। ठीक है, 3 लोग ने हाथ ऊपर उठ किया, तो ओनली दीज 3। अच्छा, समर्थ इज ऑल्सो देयर। ओमकार, प्रकृत, बॉनी एंड समर्थ, 4 लोग हैं नए जिन लोग को IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं आया। तो माय क्वेश्चन टू ओमकार, प्रकृत, बॉनी एंड समर्थ इज, बेटा आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. All the 4 of you, did you understand whatever I taught just now? Are you clear with this alkyl group? Yes, Omkar? Homie? Yes, sir. हाँ बेटा, are you clear with this alkyl group? कैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन कम किया तो अल्काइल मिलता है हमको? हाँ सर। अच्छा, can I rub this? Can I erase the board, guys? Great, sir. Okay, sir. I'll wait. And if I'm too fast, please let me know. Because mentally what I am under process कि मैंने ये सब पढ़ा दिया तो मैं रिवीजन करके समझ ला रहा हूँ, बट अगर मैं ज्यादा फास्ट हूँ तो प्लीज मुझे बताना, I'll slow down. मार्कर क्लियर है कि इंक थोड़ा भर डालूं मार्कर के अंदर? ANE निकाल करके YL डाल दिया तो करस्पॉन्डिंग अल्काइल ग्रुप मिल गया मेरे को। Completed. डन बेटा? Yes, sir. Okay. Now these are all simple straight chain compounds. ठीक है, these are all straight chain compounds जो हमने देखे अल्केन के, ठीक है? अब अगर आपको ऐसा कोई अल्केन आया तो what will you name this alkane beta? I would request the new students who have not done this before, please to answer those 4 or 5 students. It will be easier for us to interact and understand things beta. No judgment, I'm not judging you. It's so absolutely fine if you're okay. How many carbon atoms can you see over here? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atoms को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Pentane. It is an alkane. How do I know it is an alkane? There are only single bonds. There is no double or triple bond. अच्छा, इसका actual figure कैसे होगा बेटा? देखो structure. Right? ऐसा होगा, बट आप हर बार ऐसे डैश बना बना के उसको एक्सपैंड करोगे तो स्पेस भी ज्यादा लगेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम कंपाउंड है, सिर्फ एक्सपैंडेड है। अब देखो बेटा, H
ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन ही सेटिस्फाई कर रहा है एंड कार्बन इटसेल्फ। तो हम लोग इसमें से अगर कार्बन भी निकाल देंगे ना तो भी चलेगा बेटा अपने, और अगर हाइड्रोजन भी निकाल देंगे तो भी चलेगा, इट्स मीनिंग द सेम थिंग। मतलब जहाँ कार्बन का एक वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय दिस कार्बन, द रिमेनिंग 3 आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट। ये कार्बन का 2 वैलेंसी है सेटिस्फाइड बाय दिस कार्बन, बाकी के जो 2 बचे वो हाइड्रोजन, एंड सो ऑन। डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? और गाइस Yes, ओमकार sir. एंड ग्रुप, मेरे को बाकी लोग का नाम याद नहीं हुआ, सॉरी। हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ। अच्छा, अब इस सेम चीज को वो लोग और अलग तरीके से दे सकते हैं, लाइक दिस CH3 CH2 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 CH3। मतलब डैश नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे दे देंगे, एक तो एक लागो पार्ट लिख करके उसको हम लोग को ऐसे लिख देना है या फिर इसी से समझ लेना, सिंपल एज दैट। दिस इज वन वे। द अदर वे इज द लाइन स्ट्रक्चर, वो लोग ऐसा देंगे, दिस में। ये M दिख रहा है आप लोग को, M पहाड़ जैसा। ये बोर्ड पे इस टाइम जो 5 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बेटा आपको, वो सब सेम कंपाउंड के हैं, सेम कंपाउंड के। दैट सेम कंपाउंड इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दीज डिफरेंट थिंग्स। ये लाइन स्ट्रक्चर में पता है कैसा बेटा, जहां पे भी टर्मिनल दिखा ना, जैसे ये टर्मिनल या फिर जंक्शन दिखा, दैट इज हैविंग अ कार्बन एटम। 1 2 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। These are the number of carbon atoms। जहां पे भी आपको जंक्शन मतलब ये दिखेगा इंटरसेक्शन, और जहां पे भी आपको टर्मिनल फ्री एंड दिखेगा, दैट इज कार्बन एटम। वो समझ के लेने का। ओके गाइस? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चे? हाँ, तो ये है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है, दीज आर ऑल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब द थिंग इज कि व्हाट इफ आई गेट अ साइड चेन अटैच्ड टू, इस तरीके से एक साइड चेन उसमें अटैच हो जाएगा, तब भी इसका नाम पेंटेन रहेगा क्या? कितना टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन आइटम दिख रहा है बेटा यहाँ पे? कैन यू सी 6 टोटल कार्बन आइटम्स हो गया? यस सर। अच्छा, अगर 6 कार्बन आइटम्स है तो क्या होना चाहिए नाम बेटा? इसका नाम क्या होना चाहिए अगर 6 कार्बन आइटम्स है तो? हेक्सेन, राइट? हेक्सेन होना चाहिए ना नाम, अगर 6 कार्बन आइटम्स है। But the sixth carbon atom is as a side chain. So there is this very wonderful organization called as IUPAC or IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. They have laid down a set of rules to name all the organic compounds, and the rules are very very easy बेटा, ठीक है? बस 2-3 rules को नाम याद रखना है, बाकी it's all going to follow. The very first rule says identify the longest continuous carbon chain. Identify the longest continuous carbon chain. Longest सबसे लंबा कार्बन चेन एंड कंटिन्यूस होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए बीच में। ए बेटा 1 2 3 दिस इज कंटिन्यूस, राइट? 1 2 3 कंटिन्यूस है कि नहीं? कहीं भी टूटा है बीच में वो चेन? One, two, three. No. Acha. Guys, please interact. Otherwise, I will not be able to interpret whether you are understanding or not. I am not in front of you. You are not in front of me. Actually, I am in front of you. Abhi, 1, 2, 3, 4, 5. This is also a continuous chain, longest chain. अच्छा, 1, 2, 3. ये एक longest chain है. ये एक longest chain है. ये एक longest chain है. 1, 2, 3, 4, 5. ये एक longest chain है. हमने 3 तरीके से गिनती किया। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कितने कार्बन का मिल रहा है? 5 है ना? 1 2 3 4 5 का मिल रहा है। तो मैं अपने कन्वीनियंस के लिए इसको लॉन्गेस्ट चेन ले लूंगा, कंटिन्यूस कार्बन, कंटिन्यूस चेन, ठीक है? जो भी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन दैट इज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। That is the parent hydrocarbon. इसका पेरेंट क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन, है ना? अच्छा,
Second point of IUPAC nomenclature is, second point is number the carbon chain, number the carbon chain such that ये इंक में जवाब दे, ठीक है, number the carbon chain such that side chains or functional groups get the least number. ये समझ में आया बेटा पॉइंट? जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yes. नंबर, हाँ बेटा बोलो बोलो बेटा बोलो. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मुझे तब तक जब तक मैं इंक भर रहा हूं तब तक मेरे को बताओ इसका नंबरिंग कहां से करोगे, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट एंड वाई? वो चार बच्चों में से कोई एक जन बताना बेटा प्लीज. बॉनी आप बताओगे बेटा? बॉनी आर यू देयर बेटा? Then which one? हेलो, Yes, sir. हु इज दिस? Bonnie. अच्छा बॉनी आप बताओ बेटा, कैन यू टेल मी वेयर विल बी नंबर दिस चेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? Right to left. व्हाई? Side chain. Second is पे आ रहा. Left to right है. वो लेफ्ट टू राइट है बेटा, हाँ, left to right पे second पे आएगा ना side chain. लेफ्ट टू राइट में सेकंड पे आएगा एंड विच इज द लीस्ट नंबर. अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा तो कौन से नंबर पे आएगा? फोर्थ नंबर पे आएगा, विच इज द लार्जर नंबर एज कंपेयर टू 2, राइट? Yes, sir. तो अभी नंबर 1 तो भाई अभी बोलना टाइम 1 2 3 4 5 है ना. अच्छा, इन द नेम, इन द IUPAC नेम the side chain, what is the side chain? पहले देखो CH3, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था what is CH3. कोई बताएगा what is CH3 out of you four? Bonnie, what is CH3 बेटा? The name of CH3, this is the alkyl group ना बेटा. CH4, हाँ वेरी गुड ना. एक CH4 है उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? methyl. This is your methyl group. At which position it is बच्चे? At second position. So I will show that in this name. I have second position पे methyl. Second position पे methyl है in the parent carbon chain of pentane. So the IUPAC name of this compound is going to be 2-methyl pentane. IUPAC name is going to be 2-methyl pentane. Did you understand this? Yes, sir. Okay बेटा. Numbering should be done in such that the क्या बोलते हैं साइड चेन्स और द क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. देखेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी. फंक्शनल ग्रुप जो होगा या फिर साइड चेन जो होगा या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो होगा आगे के इसमें उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. अच्छा, नंबर, नेम एंड नंबर के बीच में डैश होना चाहिए. अगर यहाँ पे दो नंबर्स रहेंगे तो नंबर्स के बीच में ये होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर बेटा अगर यहाँ पे एक और मिथाइल ग्रुप अटैच होता फोर्थ पोजीशन पे तो क्या हो जाता है? ये 2,4 डाइमिथाइल, बिकॉज देयर आर 2 मिथाइल्स ना बेटा, राइट? एंड दोनों का पोजीशन बताना पड़ेगा, एक 2 पे है एक 4 पे है. 2,4 दो नंबर्स के बीच में कॉमा, नंबर और वर्ड्स के बीच में डैश. सिंपल एज दैट, हाइफन. ओके बेटा. सो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन. व्हाट इफ आई हैड वन मोर अल्काइल ग्रुप ओवर हियर ऑन द थर्ड पोजीशन, तब क्या हो जाता? ओमकार बताओ बेटा. ऐसा होता है ओमकार? 2,3,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन. हाँ सर. हाँ. पक्का ना? हाँ. So did you get this logic? ये IUPAC का ये जो ये दो मेन रूल्स है जो आपको फॉलो करना है. सिंपल एज दैट. तब कर दूं? सर हाँ कर दो. अच्छा, you guys, did you understand the rules बेटा? Yes, sir. हाँ सर.
चलो, let us identify the longest continuous carbon chain. 1 2 3 4 5 6 7 ये एक चेन है. 1 2 3 4 ये एक चेन है, बट 7 है ऑलरेडी, तो इसको मैं नहीं लूंगा. 1 2 3 4 5 ये एक चेन है. 1 2 3 4 5 6 ये एक चेन है. तो 5 वाला मिला, 4 वाला मिला, 6 वाला मिला, 7 वाला मिला. कौन सा वाला चूज करूंगा बेटा मैं? ये this is the longest continuous carbon chain. Yes or no? यस सर. It should not break in between. It should be continuous. ये continuous carbon chain है ना? अच्छा, कितने कार्बन आइटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. What is the alkane known with 7 carbon atoms? हेप्टेन. Very good. It is the parent alkane is heptane. The parent alkane is heptane. ये बेटा साइड चेन्स है. साइड चेन्स है लॉन्ग चेन में. हाँ सर. कहाँ पे है? एक ये है, एक ये है, एक ये है. कौन है साइड चेन्स? मिथाइल. 1 कार्बन आइटम का साइड चेन कौन सा होता है? मिथाइल ना बेटा. तीनों मिथाइल है. Yes, sir. यहाँ से नंबर करूं या वहां से नंबर करूं? सेम नंबर मिलेगा मेरे को. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. अगर यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7. सो वन एंड द सेम थिंग. कौन से पोजीशन पे है? थर्ड पे है, फोर्थ पे है और फिफ्थ पे है. सो 3 4 5 ट्राई मिथाइल. व्हाई ट्राई? बिकॉज देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप्स. है ना बेटा? 2 होता तो डाई आता, एक होता तो सिर्फ मिथाइल आता. इज दिस द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड? Yes, sir. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ sir. यस सर. अच्छा, वेरी गुड. लिख लिया? हाँ सर. वेरी गुड. चलो, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन, अल्केन. कोई मुझे बता सकता है इसके अंदर कितने टोटल कार्बन आइटम्स हैं, इंक्लूडिंग साइड चेन्स एंड द कंटीन्यूअस चेन? 8. ओके. एनीवन एल्स? 9. वेरी गुड. हु इज दिस 9 वाला? कौन बोला? सर समर्थ. समर्थ. Very good, beta. All the open terminals and the joints are considered to be carbon atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 carbon atoms हो गए. अब इनको बनाते हैं अपन लोग. C, 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 C. ये देखो, ये यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे है. This side chain is over here, then this is this one. ये वाला side chain is over. This is this carbon atom. This is this carbon atom. बाळांनो, कळलं का रे आपण कसं एक्सपॅन्ड केलं त्याला? आता एरो करून दाखवलंय म्हणून थोडा कन्फ्यूज होत असेल, पण मी जेव्हा एरो काढत होतो तेव्हा तुम्हाला कळलं का कोणता कार्बन कुठे घेतलाय? कार्बनला आपण हो, सर. हायड्रोजन ऍटम नाही दाखवत, म्हणजे ते व्हॅलेन्सी बाय डिफॉल्ट हायड्रोजनने घेतली आहे. ओके बेटा? इथे मी दाखवलं नाही CH3 CH2 CH2 असं. ओके, बाय डिफॉल्ट दॅट इज टेकन बाय हायड्रोजन. डिड यू अंडरस्टँड हाऊ डिड आय एक्सपॅन्ड दिस गाइज? यस सर. Okay. Yes, sir. Now since you have understood how we have expanded this, I want you to name this. I want you to give me the IUPAC name of this compound. Sir, I have a doubt. Yes beta, bolo. Who's this? Sir, Anushri. Yes बच्चे, बोलो अनुश्री. Sir, Hey, when there Batu. is this line, बोलो. when you draw the line structure, so Hmm. how to identify whether it is CH3, CH2, or just C like carbon? Yeah, you will identify it by making this structure. And even if you're not making this structure, beta, I'll tell you. This is a carbon atom. Okay, and the line is representing a bond, beta, correct? Yes. अच्छा,
this carbon atom is having only one line attached to it, तो इसका 3 किसके पास होगा? हाइड्रोजन के पास होगा by default. Yes. Now this carbon atom is having one bond over here and one bond over here, तो 2 bonds इसके खाली हैं तो किसके पास जाएंगे? हाइड्रोजन के पास. Now this carbon atom over here, one bond over here, one bond over here, one bond over here, तो इसके पास सिर्फ एक H रहेगा. Did you understand बेटा? Yes, sir. ये circles कितने lines are originating from that circle? Those many bonds are already made. The remaining is going to be satisfied by the hydrogen atom. Okay बच्चे? Okay. अच्छा. तो इसका नाम बताएं. IUPAC नेम इस वाले का. 3,4 methyl heptane. 3,4 dimethyl heptane. ये बेटा 2 है ना तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, सिंगल रहेगा तब मिथाइल रहेगा, 4 रहेगा तो क्या आएगा? टेट्रा, 5 रहेगा तो क्या रहेगा? पेंटा. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the longest continuous carbon chain which is heptane. Now when I name it from here, I'll give the least number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जब मैं यहाँ से नेम करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ से नंबर करता हूँ, साइड चेन्स को क्या नंबर मिलता है? 4 and 5. यहाँ से नंबर करता हूँ तो क्या मिलता है? 3 and 4. तो 3 and 4 लीस्ट है, इसलिए नंबर इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. 3,4 dimethyl heptane. That is the correct answer. समझा बच्चे लोग? Yes, sir. Yes, sir. Am I going too fast? I hope I'm not too fast. If I am, please let me know. ये लिख लिया? Yeah. Come on. Identify first. Identify the longest continuous carbon chain. पहले सिर्फ मुझे इतना बताओ, इसका longest continuous carbon chain कितने carbon atoms का है? 8. 8. Very good. 8 दिख रहा है सब लोग को? Longest continuous carbon chain. 8. This is continuous carbon chain. How many side chains can you see? 3. 1, 2, 3. Beta, these two are what? Methyl. Single carbon atom है ना side chain में? Yes. हाँ. और ये वाला देखो साइड चेन में 2 Ethyl. कार्बन एटम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? Methyl. Ethyl. This is your ethyl. अच्छा. Now we will start numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ से नंबर किया तो इसको 3, 4 नंबर मिलेंगे. यहाँ से क्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ से नंबर किया तो 5, 6. यहाँ से नंबर किया तो 3, 4. So it's better we number it from this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 मतलब क्या बेटा? Which alkane? Octane. Octane. Parent alkane is octane. अच्छा. Third and fourth position I have dimethyl and the fourth position I have ethyl. तो मैं कैसे इसका नाम बताऊंगा बेटा? अभी 2 अलग-अलग साइड चेन्स लगेगा हुआ. 4 पहले ethyl. ethyl लिखो कि पहले मिथाइल लिखो? That is the question. Ethyl. Why ethyl? मैं ethyl पहले क्यों लिखूं? Because of Alphabetical order. Alphabetical order. So when there are more than 2 side chains, you will decide by alphabetical order. पहले E आता है as compared to M. तो इसलिए पहले हम ethyl लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल लिखेंगे. समझ गया ओमकार बच्चा? Yes. ओमकार, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है. फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है. नंबर और नेम के बीच में डैश. उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन 3,4. कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो Dimethyl octane. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 3,4 Dimethyl octane. यस और नो? Yes. Yes, sir. इजी है ना? डिफिकल्ट नहीं है ना? Yes. हाँ, लिख लिया? No, sir. लिखें प्लीज. Yes. लिखें.
Yes, no, maybe. Yes. Yes. Done. हो गया सर. हो गया सर. Okay. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कितने कार्बन आइटम्स का है वो बताओ. 5. पक्का? All possibilities देखना. Check out all the possibilities. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सब जगह से देख लिया हम लोग ने. ठीक है. लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 5 कार्बन आइटम. बेटा ये भी है और ये भी है. फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल टेक दिस स्ट्रेट चेन बिकॉज़ इट इज इजियर टू नंबर. यहां से नंबर करूं कि यहां से नंबर करूं? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? Left to right. लेफ्ट टू राइट. 1 2 3 4 5. अगर यहां से नंबर क्या होता था? 1 2 3 4. इनको 3 4 मिलता है. यहां से कितना मिल रहा है? 2 3. तो 2 3 इज बेटर, राइट? अच्छा, सबसे पहला लॉन्गेस्ट कौन सा है? पेंटेन, बिकॉज 5 कार्बन. अच्छा देखो बेटा, सेकंड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल है, थर्ड पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल है. तो जितनी बार वो पोजीशन पे लगा है वो पोजीशन नंबर मैं दिखाऊंगा. सो इट इज गोइंग टू बी 2,2 3,3 टेट्रामिथाइल पेंटेन. टेट्रामिथाइल पेंटेन सेकंड पोजीशन पे 2 बार है तो दोनों बार वो पोजीशन दिखना चाहिए. थर्ड पोजीशन पे 2 है तो इसलिए वो पोजीशन 2 बार लिखना चाहिए. टोटल कितना है मिथाइल? 4. तो क्या हो जाएगा? टेट्रामिथाइल पेंटेन. नहीं? हाँ, Yes. ओमकार हाँ. and I forgot the other name, man. Other guys, Yes, sir. is it good to go? देख लिया? हाँ सर. अच्छा, you are understanding कैसे करना है नेमिंग? ये अल्केन का समझ गया ना आपको नोमेनक्लेचर. बाकी सब कंपाउंड्स का आप समझ जाओगे. बाकी सब कंपाउंड्स में ना फिर सिर्फ यहाँ पे ANE निकाल करके उसका सफिक्स लगाना पड़ेगा. और अल्कोहल के लिए OL, अल्काइन के लिए YNE, अल्कीन के लिए ENE एंड सो ऑन. बाकी सब कुछ सेम रहे. ठीक है बेटा? Completed, sir. चलो, फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. It should be continuous. It should not be breaking. Bonnie, 9. can you do this for me? It's 9. Okay. Okay. Let us see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Longest is 9. Agreed. But ये भी carbon atoms है ना? Yes or no? Let us expand this. 1, 5. Fifth position पे ऐसे दिया हुआ है. 6, 7, 8, 9. This is the structure. ठीक है बेटा? And this is your longest continuous carbon chain. Since it is 9, कहीं से भी नंबर करूं ये 5 ही आने वाला है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 है तो नाम क्या हो जाएगा बेटा इसका? पेरेंट नेम? No name. नो नेम. दैट इज द पेरेंट. नो नेम. अच्छा, ये बेटा फिफ्थ पे क्या लग रहा है आपको? क्या अटैच्ड है?
फिफ्थ कार्बन एटम पे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? ये देखो, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, बिग डील। फिफ्थ कार्बन एटम पे कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है? मिथाइल। और बेटा इट्स प्रोपाइल ना, 3 कार्बन एटम्स। गाइस फिफ्थ पोजीशन पे 3 कार्बन एटम का साइड चेन है। 3 कार्बन एटम के अल्काइल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपाइल, राइट? यस सर। So this is going to be the name 5-propyl nonane. अरे यस नो कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ सर। समझा ये? हाँ सर। अच्छा अच्छा, लिख लिया? हाँ सर। ओके बेटा। भाई फर्स्ट टेल मी वेदर दिस इज अ अल्केन और अ अल्कीन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अल्कीन। दिस इज अ अल्कीन। अच्छा, कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं बेटा? 6। 6 कार्बन एटम्स, राइट? यस। अच्छा, 6 कार्बन एटम्स के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? हेक्सेन। हेक्सीन। इट इज अ अल्कीन बिकॉज इट हैज अ डबल बॉन्ड। ये देखो, इसको डबल बॉन्ड है ना। अल्केन माइनस ANE प्लस ENE will give me alkene, corresponding alkene. Ethane minus ANE plus ENE will give me ethene. 2 कार्बन एटम्स ना। 3 कार्बन एटम्स का क्या होता है बेटा? प्रोपेन। प्रोपेन से क्या मिलेगा मेरे को? प्रोपीन। अरे अल्कीन में से एन निकाल दो, अल्कीन का एन डाल दो, नाम बन जाएगा उसका। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड सो ऑन। समझा नहीं? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है गाइस? नहीं। नहीं सर। नहीं तो बोलो ना कि कंफ्यूजन नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे तो मुझे लगता है कि नहीं समझा है। ये समझा इसका नाम हेक्सीन क्यों आएगा? हाँ। अल्केन का एन निकाल देने का, उसको इन से रिप्लेस कर देने का, अपने को अल्कीन मिल जाएगा। तो हेक्सेन था अपने पास 6 कार्बन एटम का, इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो ये हेक्सेन नहीं है, ये क्या हो जाएगा? हेक्सीन हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, आई रब दिस। बॉयज, गर्ल्स, अदर्स, डॉक्टर। लिख लिया बेटा? रब कर दूं? थोड़ा जोर से बोल दो हाँ। ना, शर्मा रे, बाप रे बाप। हाँ भाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? अभी हेक्सीन। सिर्फ हेक्सीन नहीं होगा, सिर्फ हेक्सीन नहीं होगा। इन हेक्सीन sorry, in alkenes and in alkynes you will have to specify the position of the double bond also. Now you will number this carbon chain, you will number this chain such that the double bond gets the least number. यहां से नंबर करूंगा तो ज्यादा मिलेगा, यहां से नंबर करूंगा तो कम मिलेगा। ठीक है? 1 2 3 4 5 6, और यहां से नंबर किया था 1 2 3 4 5 6। यहाँ से नंबर करो, ज्यादा नंबर मिल रहा है इसलिए मैं यहाँ से नहीं करूंगा। ठीक है? अच्छा बेटा, किन 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है? सेकंड और थर्ड, राइट? कैन यू सी सेकंड एंड थर्ड? यस सर। अच्छा, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर मिलेगा? द लीस्ट नंबर, सेकंड। तो इसका नाम पता क्या आ जाएगा? हेक्स 2ईन। हेक्स इन के बीच में उसका पोजीशन बताने का। व्हाट इज दिस 2 रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द सेकंड कार्बन एटम, बिटवीन सेकंड एंड द थर्ड कार्बन एटम। ये और इसके नेक्स्ट वाला नंबर, ये 2 कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड है। समझा बेटा कि नहीं समझा? सर। हाँ सर समझा। हाँ बेटा बोलो।
सर 2 हेक्सीन नहीं लिख सकते? 2 हेक्सीन भी लिख सकते हो, 2 हेक्सीन भी लिख सकते हो, बट दिस इज अ वेरी ओल्ड वे. द लेटेस्ट वे इज दिस IUPAC के हिसाब से. So let us follow the latest trend ना बेटा. Okay, Yes. 2 hexiene is also not wrong, but the latest is hex 2 तो अपन ऐसा फॉलो करेंगे. Okay बेटा. Yes. Yeah, लिख लिया. Can I erase this? Yes, sir. Yes, sir. चलो, try to name this hydrocarbon. Longest continuous carbon chain कितना है पहले वो बताओ. 5. 5. करेक्ट 5. बेटा हमेशा ऐसे मत सोचना कि यही हमेशा स्ट्रेट चेन आएगा. अलग तरीके से भी देखने का, ठीक है, अलग अलग तरीके से भी देखने का कि अगर मैं यहाँ पे ये एक ऐड कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 ये कंटिन्यूअस कार्बन चेन हो जाएगा और ये साइड चेन हो जाएगा. समझे? हाँ. हाँ, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वही साइड ये स्ट्रेट वाला ही आएगा साइड चेन. ठीक है, दिस इज योर कंटिन्यूअस कार्बन चेन. 1 2 3 4 5 5 है और पेंटीन. ठीक है, नंबरिंग कहां से करूं, यहां से करूं कि यहां से करूं? द प्रायोरिटी शुड बी द डबल बॉन्ड. द डबल बॉन्ड शुड गेट द लीस्ट नंबर. मैं कहां से करूंगा बेटा? यहां Right to से. left. 1 2 3 4 5. So this is a pent what ene? बताओ. 2. Very good. This is a pent 2ene because second carbon atom और third carbon atom के बीच में डबल बॉन्ड. साइड चेन्स कितने बेटा? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. कौन से पोजीशंस पे है? 3 और 4 पे. कौन सा है? मिथाइल और मिथाइल. तो इसके पहले क्या आ जाएगा बेटा? 3,4 dimethyl. एक्सीलेंट. 3,4 डाइमिथाइल पेंट 2ene. हेक्सीन्स अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे हम लोग. अल्केन्स का हमने देखा, अल्कीन्स का अब हम लोग देख रहे हैं. Yes or no? Yes. Yes, sir. It is एकदम सिमिलर टू अल्केन्स, बस यहाँ पे अल्कीन का नाम आ जाएगा. बाकी आगे का जो प्रीफिक्सेस है वो सब में सेम रहेगा. Whether it is alcohol, whether it is aldehyde or whatever, सिर्फ ये चेंज होगा. बाकी का आगे का जो प्रीफिक्सेस है वो सबके लिए सेम रहने वाला है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा. ठीक है. अच्छा, अगर इस पोजीशन पे यहाँ पे एक क्लोरीन एटम होता तो इसका नोमेनक्लेचर में क्या बढ़ जाता बेटा? ये बढ़ जाता 4 क्लोरो 3,4 dimethyl pent 2ene. क्लोरीन इज व्हाट बेटा? इट इज अ हैलोजन ना. क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी लग सकता है कंपाउंड में. तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स हो सकते हैं. हाइड्रोजन एटम को निकाल के किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं वहां पे, राइट? तो अगर फोर्थ पोजीशन पे ऐसा आएगा तो क्या नाम आएगा इसका? 4 क्लोरो. व्हाई? बिकॉज C कम्स बिफोर M, इसलिए 4 क्लोरो 3,4 dimethyl pent 2ene. अयो, too much confusion. Did I confuse you? Did I make a mess over here, guys? Tell me. No. Is this clear, guys? Yes. तुम लोग का आज पहला लेक्चर नहीं है, राइट? तुम लोग इससे पहले भी लेक्चर्स में बैठ चुके हो ना? हाँ. हाँ, sir. तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है तुमको अभी हम लोग आगे क्या कर रहे हैं क्लास में, राइट? ओमकार एंड ग्रुप, it is either a yes or a no. It just cannot be silent ना बेटा. या तो हाँ या तो ना. बॉनी, ओमकार, प्रकृत, समर्थ. हाँ सर, समझ रहे. पक्का ना? ये आपका पहला लेक्चर नहीं है ना? हमने पहले भी ऐसे केसेस करके उसमें देखे थे ना. मैंने आपको ये भी दिया था, होमवर्क वगैरह भी दिया था. हाँ बोलो. हाँ हाँ. Ooh, look at this. Look at this. What can you see? You can see 2 double bonds in one chain. Hello, Yes. guys. अरे चले गए क्या सब लोग? अरे बच्चे लोग, एक ही चेन में आपको 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 and 2. Yes. Guys, speak. sir. Are you sleeping? हाँ, 2 sir. double bonds. Still this is a sir. alkene. This is a diene. 2 डबल बॉन्ड है. इसको नाम देखो कैसे करेंगे. 1 2
3 4 5 6 तो वन डबल बॉन्ड इज एट सेकंड पोजीशन, अदर डबल बॉन्ड इज एट फोर्थ पोजीशन। 4 और 5 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हेक्सेन, तो इसका नाम देखो कैसे आएगा, हेक्स 2,4 2,4 डाइईन। इन से पहले ये लग जाएगा डाई, बिकॉज यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। हेक्स 2,4 डाइईन। अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो क्या होता बेटा, ट्राइईन। समझे? हाँ Yes. पक्का? हाँ ओके, लिख लिया? हाँ हाँ ही होगा, मुझे बोल कोई बात। Yeah. Tell me, which is the longest continuous carbon chain over here? And how many carbon atoms it has? 1, 2, 3, 4, 5 or 1, 2, 3, 4? क्या होगा बेटा? 5 5. Everybody? 5 सही है? Yes. Very good बेटा. 5 is wrong. The longest continuous carbon chain is this. Always remember, whenever we have double or triple bond, the double and triple bond has to be in the longest continuous carbon chain for nomenclature. Double और triple bond can be a side chain बेटा, ठीक है? तो जो डबल बॉन्ड है उसको लॉन्गेस्ट चेन में कंटिन्यूस करो। तो अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे कौन सा साइड चेन लगा हुआ है बेटा, इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में डबल बॉन्ड है ना। अगर फर्स्ट कार्बन एटम और सेकंड कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप लोग डायरेक्टली ब्यूटीन भी लिख सकते हो या फिर ब्यूट 1 इन, व्हाटएवर सूट्स यू। So the answer is going to be 2 methyl but 1 ene. नहीं? हाँ? हाँ बड़े दुखी से हो गए यार तुम लोग, क्यों ऐसे दुखी हो रहे हो? Please tell me. So always remember this double bond or the triple bond has to be included in the longest continuous carbon chain. इसलिए मैंने तुमको ये एग्जांपल दिया। आप लोगों ने क्या किया, 1 2 3 4 5, hey भाई 5 is the continuous carbon chain। भाई डबल बॉन्ड देखो वो है, जहां पे भी डबल बॉन्ड देखेगा it has to be included in the longest continuous chain। तो इसीलिए this is going to be the chain। अब देखो बेटा, अगर this is one possibility and this is one possibility, 1 2 3 4 1 2 3 4, आप कोई भी ले लो, नाम सेम है, ठीक है ओके guys? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अच्छा, ये मस्त है। चलो इसको नॉमेनक्लेचर करके बताओ, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन ओवर हियर? सेवन 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 दिख रहा है बेटा मेरे को, 7 कहां पे? दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन ना, 6। अब इसको नंबरिंग करते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6। अल्केन है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, है ना? यस। Yes, sir. यस देखो सर फोर्थ पोजीशन पे साइड चेन है, फिफ्थ पोजीशन पे साइड चेन है, सेकंड पोजीशन पे साइड चेन है और थर्ड पोजीशन पे साइड चेन है। ये वाला कौन सा साइड चेन है बेटा, दिस इज योर मिथाइल, दिस इज योर मिथाइल। ये कौन सा है, ये भी मिथाइल। ये कौन सा है, ये भी मिथाइल। लुक एट दिस, ये कौन सा है? Propyl. Fine. This is not propyl, yeah this is propyl but it is isopropyl। Why isopropyl? ये देखो इस तरीके से L शेप में जब भी प्रोपाइल दिखेगा ना, that is the iso shape, ठीक है? एक नियो शेप भी होता है, देखो this is called as the neo shape, this is neopentane, this is isopropane, ठीक है बेटा? M पहले आता है कि P पहले आता है? M आएगा। कितना मिथाइल है, 3 मिथाइल है। कौन कौन सा पोजीशन पे है, 2 4 एंड 5। सो 2, 4, 5 कितना है, 3 ट्राई मिथाइल।
three isopropyl hexane. इसका नाम देखो ये होगा 2,4,5 ट्राइमिथाइल 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। अरे बेटा, हाँ सर। जो लोग नए लोग हैं वो लोग तो है ना कि वो चले गए? सर है। Did you understand this बच्चे? यस। So is IUPAC nomenclature मोटा मोटी क्लियर इन योर माइंड कि क्या करना होगा IUPAC nomenclature में? और अगर आपने पिछले 2-3 लेक्चर बैठे रहेंगे तो उसमें भी आपने दूसरे एग्जांपल्स देखे होंगे जो मैंने सॉल्व किए थे, राइट? Yes, sir. ठीक है? So let us meet in the next session then. I hope you have understood whatever I have revised today in this lecture.